Okay, so let us continue once again. हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी व्हीकल जब इस तरह से ट्रैवल कर रहा है तो बैंक रोड पे, तो उस केस में उसका जो सेफ्टी स्पीड लिमिट है, safety speed limit can be given by this formula, which is simple to derive. You can see clearly we have just started with the forces acting on this vehicle, and we have got that there are three forces acting on this vehicle. One is the mg, that is the gravitational force, which is acting in a downward direction. The second is the normal reaction, which is acting at right angles to the surface of the road. And we have third force, which is the centrifugal force, which is due to the circular motion of the vehicle. So along with all these three forces, we have resolved this normal reaction in two components, one of which is a vertical, which is called as n cos theta, we have seen, and the second one is denoted by n sin theta, which is horizontal one. And both of these components, these are the components of the normal reaction. And now we have equated, तो हमको इक्वेट करना होता है इस n cos थीटा को इक्वेट करना होगा इस mg के साथ, जिससे हमको एक इक्वेशन मिलता है जो कि यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 करके बोला है. और दूसरा इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग द horizontal component of n and fc को अगर हम इक्वेट करेंगे तो इससे हमको दूसरा फर्स्ट इक्वेशन मिलता है जो कि fc is equal to n sin theta, नो डाउट. और उसके बाद फिर हमको इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली डिवाइड करना है, तो हमको मिल जाता है fc डिवाइडेड बाय mg, which is equal to n sin theta divided by n cos theta, so that we can get this equation, so that n gets cancelled and m also gets cancelled from both the numerator as well as denominator, and we get this simple thing that n कैंसिल करने के बाद हमको ये मिल जाता है v स्क्वायर अपॉन rg. ये जो r है ये सीधा जाके यहाँ पे इस तरफ g के साथ बैठ जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन rg हमको मिलेगा tan theta, and this tan theta, this rg can be shifted to that side so as to get this v square equal to rg tan theta, and then we can get this v equal to root of rg tan theta. This can be obtained as an equation for the velocity for the safety speed limit of a vehicle traveling along banked road. अभी ये समझ लो ठीक से यहाँ पे कि यहाँ पे v इक्वल टू जो हमने अभी ऊपर में फॉर्मूला जो डिराइव किया था फ्रिक्शन के बेसिस पे, फ्रिक्शनल फोर्स जब एक्ट कर रहा था, यहाँ पे जो हमने देखा है, देखिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी सेफ्टी स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल, दिस वन हियर. ये देखो, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था अभी, तो उसके साथ अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखिए हमको क्या समझ में आएगा. तो ये v इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा, ये हमने इस तरफ यहाँ पे डिराइव किया, और ऊपर में हमने जो डिराइव करके रखा था रूट ऑफ आर जी म्यू इंटू आर जी. देखो म्यू इंटू आर जी, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं
velocity depends on radius, square root of radius. No doubt, it's clear. It is correct. दूसरी चीज हम जो समझ सकते हैं, it depends on gravity also. No doubt, gravity पे भी डिपेंड करता है. वो तो दोनों तरफ हमको दिख रहा है, ठीक है. लेकिन तीसरी एक चीज जिसके ऊपर ये velocity डिपेंड कर रहा था, वो है frictional coefficient of friction. And hence we can say that the coefficient of friction का जो काम है, वो यहाँ पे इस केस में tan थीटा कर रहा है. और इसके लिए जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस फॉर्मूला और दिस मेथड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स इज मोर रिलायबल देन जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्शन. क्योंकि फ्रिक्शन के ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं रख सकते, या पूरी तरह से हम हमेशा फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते. और उसका रीजन यही है कि कभी कभी जो रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन के केस में हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल का जो कोएफिशिएंट है वो बहुत हद तक कम हो जाता है. और ऐसे केस में the frictional force will be insufficient. It will be unable to act as a centrifugal force or unable to balance the centrifugal force. In that case, we can have the this velocity safety speed limit to be very very small, just because frictional force is very small in case of rainy season. But in case of even in case of rainy season, if we bank this road at particular angle theta, then we can just get this speed which doesn't depend on the surface of the nature of the surface. तो वो सरफेस कौन कैसा भी हो, वेट हो या ड्राई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे थीटा इज गोइंग टू बी मेन डिसाइडिंग फैक्टर. तो यहाँ पे थीटा मेन डिसाइड करने वाला है कि सेफ्टी स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए. अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ ना भी हो तो भी यहाँ पे हमको फ्रिक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी मिलने वाला ही है, इतना ही वेलोसिटी हमको मिलने वाला है. तो इसलिए अगर फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं तो उल्टा वेलोसिटी और ही ज्यादा मिलेगा हमको. उल्टा हम और ज्यादा हाई स्पीड से जाके भी सेफ रह सकेंगे along the banked road. That's why banked road are more safer than the horizontal roads, and that's why banking of roads is done at the curves, at the turn. तो जब भी कोई रोड टर्न लेता है तो उस केस में हमको ये रोड को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैंक करके रखना पड़ता है, ताकि वहां पे जाने वाला जो व्हीकल है वो हाई स्पीड पे जाके भी स्लिप ना हो, स्किड ना हो. अभी अभी हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ऐसे जो बैंक रोड होता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या मिलता है. तो एक अलग डेरिवेशन हमको मिलेगा इफ यू कंसिडर द फ्रिक्शन एज वेल एज द बैंकिंग. तो कंसिडर करो फिर से एक बार, जो एक सपोज व्हीकल विच इज ट्रैवलिंग अलोंग द बैंक रोड like this. This is suppose the horizontal surface, and suppose the surface of the road which is banked at some angle is drawn here in this way. तो ये रोड का सरफेस है जो हम यहाँ पे बैंक किया हुआ है. और अभी यहाँ पे कंसिडर करो एक व्हीकल, ठीक है ना, which can be represented by a point. यहाँ पे फिर से एक बार हम पॉइंट से इस व्हीकल को रिप्रेजेंट करेंगे. The center of mass of that vehicle will be the point. Okay, so let us consider okay, so once again we'll consider the same vehicle. अभी इसमें एक बात समझ लो कि हम यहाँ पे जो नेक्स्ट डेरिवेशन जो करने वाले हैं तो वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि टेक्स्ट बुक में वो कहाँ पे है. ये आपका टेक्स्ट बुक, जिसके अंदर हमने कल ये डेरिवेशन देखा था. उसके बाद हमने ये वेल ऑफ डेथ का जो इक्वेशन है वो हमने अभी देख लिया, जिसका रिजल्ट हमको जो मिला वो हम समझ सकते हैं. This is the v equal to root of rg upon mu. This is the equation which is a result of this derivation. And next is about the vehicle of bank road.
तो बैंक रोड पे क्या होता है ये हमको यहाँ पे अभी समझना है. सो दिस डेरिवेशन वी आर गोइंग टू सी नाउ, जिसमें दो केसेस बनते हैं. फर्स्ट केस बन रहा है यहाँ पे द मोस्ट सेफ स्पीड, यू कैन से दैट इट्स अ मैक्सिमम स्पीड विल से. तो ये जो स्पीड है यहाँ पे जो हमको बात की जा रही है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना. वी कैन डिराइव दिस एज. एंड दूसरी तरफ हमको लोअर सेफ स्पीड भी निकालना है. देखिए दो डायग्राम्स हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली. एक तो मैक्सिमम स्पीड और दूसरा मिनिमम स्पीड. तो अगर हम सपोज ये देखेंगे ठीक से, तो यहाँ पे हम तुम्हारा लोअर स्पीड के लिए हमको अलग से डेरिवेशन करना होगा. और अपर स्पीड लिमिट मतलब मैक्सिमम स्पीड लिमिट और मैक्सिमम स्पीड विथ विच द व्हीकल कैन ट्रेवल, उसके लिए हमको अलग से डेरिवेशन करना होगा. These are the two different cases. This can be supposed to be case 1. इसको हम case 1 बोलेंगे और इसको case 2 बोलेंगे. Case 1 मतलब upper speed limit. We'll have to find out the maximum speed which which the vehicle can travel. We have to find out. That is in case 1. And in case 2, we have to find out the lower speed limit, which is the minimum speed with which the vehicle should travel along this bank road. तो बैंक रोड के अंदर मिनिमम स्पीड से वो ट्रैवल करना जरूरी है, तो वो स्पीड भी हमको निकालना है. ये दोनों हम करेंगे अभी फटाफट. तो देखिए ठीक से, तो चलिए फिर से एक बार बोर्ड पे. तो समझो ये एक व्हीकल है जो कि जिसका हॉरिजॉन्टल सरफेस ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये है. और दूसरा सरफेस जो रोड का सरफेस जो है वो कुछ ना कुछ एंगल पे है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. और व्हीकल जो है, व्हीकल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट. its center of mass will be here, somewhere here, and all the forces acting on the vehicle will be shown to be acting on the center of mass of that vehicle. तो center of mass पे सभी forces काम कर रहे हैं, ऐसे हम यहाँ पे imagine करेंगे. तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहला force, important force इस vehicle के ऊपर जो काम कर रहा है वो है gravitational force as we know it. तो it is nothing but mg. तो ये mg जो force है वो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, नो डाउट. दूसरा फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है, जैसा कि हम अभी भी हमने लिया था, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द सरफेस ऑफ रोड व्हिच इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. तो इस वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बना के यहाँ पे है, ये नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम डिनोट करेंगे. इफ वी कंसीडर दिस एंगल एज थीटा, देन द एंगल मेड बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन विद वर्टिकल विल आल्सो बी थीटा, नो डाउट. द थर्ड फोर्स इन द लिस्ट is going to be the centrifugal force which is acting at along the radius away from the center like this here. तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे FC मतलब ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होगा जरूर. और चौथा जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है वो है FS, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. अभी देखिए ठीक से कि अगर ये व्हीकल जो है वो हाई स्पीड में जा रहा है, सबसे पहला केस जो हम देखेंगे, फर्स्ट केस वी हैव टू सी इज द safety speed limit, maximum speed limit we have to find out. Maximum speed with which the vehicle can travel we have to find out. तो ये अगर हमको मैक्सिमम स्पीड अगर हमको निकालना है तो ऑब्वियसली ये व्हीकल जो है वो बहुत हाई स्पीड पे जा रहा होगा जरूर. तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं कि व्हेन द व्हीकल विल ट्रैवल एट हाई स्पीड, इट विल टेंड टू स्लाइड दिस वे. तो इस डायरेक्शन में वो स्लाइड होने के लिए ट्राई करेगा. और हमको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द स्लाइडिंग, and that's why the frictional force will be acting to oppose the sliding, and it will be acting like this in this direction here. तो इस डायरेक्शन में जो है ये frictional force काम कर रहा होगा when the vehicle will be traveling with the maximum speed, and we can call this frictional force as Fs. It is a limiting force of static friction. We can call it as Fs. Now we have to consider our x-axis and y-axis. So let us take x-axis along the horizontal here and y-axis to be along the vertical. So x-axis और y-axis को अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं. Suppose this is our y-axis, ये हमारा y-axis हो गया. और दूसरा x-axis जो है वो इसी पॉइंट में से पास होने वाला इस डायरेक्शन में, ये बनेगा हमारा x-axis. अभी हमको क्या करना है, देखिए ठीक से कि जो x-axis और y-axis के अलॉन्ग है वो फोर्सेस को रिजॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो फोर्सेस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलावा नहीं है उनको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा जरूर. सो वी कैन सी ऑलरेडी दिस FC is going to be along x axis, so no need to resolve it. And
But here, as we can see clear that the force, जो force mg and fc need not to be resolved because they are already along x-axis and negative y-axis, no doubt. But this n has to be resolved into components, and this fs also has to be resolved into components. But before resolving them, you can understand this angle, as we have just seen in the last derivation, will be theta. Obviously, ये angle भी theta होगा जरूर, क्योंकि वो vertical के साथ normal reaction का बना हुआ angle है. और अभी हम देख सकते हैं कि the angle made by this fs with this horizontal is also going to be theta, no doubt. इसको भी हमको थीटा बोलना होगा. ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा जरूर. उसका रीजन यही है कि देखो ठीक से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को पैरेलल दिख रहे हैं ऑलरेडी. और ये जो ट्रांसवर्सल इनका है, ये ट्रांसवर्सल, या इसको भी ट्रांसवर्सल ही बोल सकते हैं, नो डाउट. तो ये ट्रांसवर्सल्स इसको जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये एंगल जो है और ये एंगल जो है वो बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं. और अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से ये दोनों इक्वल होंगे, नो डाउट. तो once we get the angles, we can now in a position to resolve them. तो इनको resolve करना जरूरी है. तो n can be resolved as usual, as we have done it in last derivation also, in the two ways. That is, first is n cos theta, which is the vertical component, we can say. This is n cos theta. And the second one is going to be n sin theta, which is horizontal. तो इसको हम बोल देंगे n cos theta इधर, ठीक है. और दूसरा जो है इसका कंपोनेंट वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हिच इज गोइंग टू बी n sin थीटा. सो उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे आराम से, n sin थीटा, ठीक है. अभी हमको fs को भी रिजॉल्व करना है. देखो ठीक से, fs आल्सो नीड्स टू रिजॉल्व. तो अगर इस fs को रिजॉल्व करेंगे तो हमको एक कंपोनेंट उसका इस तरफ मिल जाएगा आराम से, व्हिच विल बी डिनोटेड बाय fs cos थीटा, जस्ट बिकॉज दिस थीटा इज एडजेसेंट हियर. तो एडजेसेंट वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा ये होता है, एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा cos थीटा से मल्टीप्लाई करके हमको मिल जाता है, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो हमेशा sin थीटा से मल्टीप्लाई करके हमको मिलता है. If we just keep this fs, इस fs को अगर हम यहाँ पे अगर लिखते हैं, because this is actually fs, so we can write here. Now fs can be resolved into components, one of which is fs cos theta. ये जो component है fs cos theta कहलाएगा, no doubt. और at the same time it's vertical component. ये जो vertical component इस fs का है वो इस तरफ यहाँ पे काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे fs sin theta. This is going to be fs sin theta. You can write it here, fs sin theta. ठीक है. अभी इन सब फोर्सेस के साथ हम चलते हैं आगे इक्वेशंस बनाने के लिए. तो सबसे पहला इक्वेशन क्या बनेगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस कितने हैं, एक ही है, देख रहे हैं यहाँ पे. और डाउनवर्ड फोर्सेस जो है वो दो हमको दिख रहे हैं, mg और fs sin थीटा. तो हम समझ सकते हैं कि अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम का अगर कंडीशन हम यूज करते हैं तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का एक कंडीशन हमको यूज करना है. तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए राइटवर्ड फोर्स कितने हैं, एक ही है fc सपोज, और दूसरा लेफ्टवर्ड फोर्सेस दो है, n sin थीटा और fs cos थीटा. तो सम ऑफ these two forces will balance this fc alone, and the sum of these two forces, fs sin theta and mg, will balance this n cos theta alone. And that's why we can construct two equations, first of which is going to be, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमको मिलेगा वो ये रहेगा. मैं वापस कर देनी मुझे मेरे ने. तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमको मिलेगा वो ये है कि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम यूज करेंगे. उसमें से ये fc जो है, this fc will be balanced by the sum of this fc n sin theta and fs cos theta. तो उससे हमको फर्स्ट कंडीशन मिलेगा. वी कैन राइट इट इजीली, fc is equal to ये n sin theta plus
here it is fs cos theta. ओके, ये हमने यहाँ पे डाल दिया. अभी दूसरा इक्वेशन, this can be written as equation number 1, and now the second equation can be constructed like this. N cos theta is balanced by this sum of this fs sin theta and mg, and hence we can get this as n cos theta. The second equation will be like n cos theta is equal to mg plus fs sin theta, fs sin theta. But we can just slightly rearrange this equation so as to get this mg here. तो इस mg को अगर हम इस तरह से लिख देंगे यहाँ पे, तो mg is equal to, ये जो है हमको ये mg equal to fs sin theta इस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिल जाएगा n cos theta minus fs sin theta. ये हमको मिल गया. This is going to be the equation number 2, we can say. तो ये सेकंड इक्वेशन हमको मिल गया. अभी जस्ट अगर हम इस दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करेंगे, as we have done it in the last derivation also, divide the equation number 1 by 2. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं आराम से कि ये ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा Fc, which is the centrifugal force, we can say, divided by mg, which is here in the denominator. But here in the right side we'll be left with this fraction, this factor, which is n sin theta. So ये n sin theta plus fs cos theta, and that is to be divided by this n cos theta. यहाँ पे आएगा n cos theta minus fs sin theta. ठीक है, ये इक्वेशन हमको मिल गया. लेकिन और एक इम्पोर्टेंट बात हमको यहाँ पे यूज करनी है कि द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, limiting force of static friction, Fs, is always equal to mu into n. Here n is called as normal reaction and mu is called as the coefficient of static friction. So if you replace it here, then yes, any of you have doubts? कोई डाउट है किसको? पापा ने नहीं, मम्मी ने करी थी. पापा किस पे कर दो? Okay. अगर किसको डाउट है तो सीधा अनम्यूट करके बोल सकते हैं. किसी को कोई डाउट है? इधर तक सभी को समझा है? ओके, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप हियर. तो fs जो होता है वो mu into n हुआ करता है. तो अगर हम ये बात यहाँ पे रखेंगे, यूज करेंगे, तो हमको ये मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा. और इवन ये भी हमको पता है कि Fc जो है, इट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय mv² अपॉन r. ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है. दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, which is to be replaced here and divided by mg as it is, which is going to be equal to, अभी यहाँ पे आ जाएगा n sin theta, which is kept as it is, प्लस fs के बदले हम रिप्लेस करने जा रहे हैं mu into n into cos theta, no doubt, and here it is n into cos theta as it is, minus fs is going to be replaced by mu n into sin theta, and now we can say this m will get cancelled. तो ये m को अगर हम कैंसिल कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा v² upon rg, which is equal to, here it is going to be n sin theta. अभी इन दोनों फैक्टर्स में से हम देख रहे हैं क्लियर कि n can be taken common. So if we take n common from this, then what we are left inside, sin theta plus mu cos theta, and here it is n common again, and we are left with cos theta minus mu sin theta. Okay, so that this n
once again gets cancelled. तो अगर इस n को कैंसिल कर देंगे तो हमको नेक्स्ट स्टेप में जो मिलेगा हम समझ सकते हैं v स्क्वायर अपॉन आर जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो न्यूमरेटर में, अच्छा अभी n कैंसिल करने के बाद और एक बात हम करेंगे, एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड बाय cos थीटा, सो जस्ट डिवाइड बाय cos थीटा। अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय cos थीटा, अगर हम cos थीटा से इनको डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ऊपर में वो बन रहा है यहाँ पे sin थीटा which has to be divided by cos थीटा, so this is sin थीटा divided by cos थीटा प्लस यहाँ पे फिर से एक बार cos थीटा जो है म्यू cos थीटा है एक्चुअली वो, तो म्यू इंटू cos थीटा which has to be divided by cos theta only upon again cos theta divided by cos theta only and minus here it is mu sin theta and that is to be divided by cos theta. And now if we simplify this further then we can get this as v square upon rg once again which is going to be equal to the numerator, देखिए यहाँ पे जिधर भी sin थीटा अपॉन cos थीटा बन रहा है वो tan थीटा बन जाएगा आराम से, तो ये जो है हमारा tan थीटा बन गया, this is going to be tan थीटा and plus here it is going to be mu, mu मतलब ही coefficient of friction which is divided by cos थीटा इधर कैंसिल हो जाएगा, वो इधर भी कैंसिल हो गया था वो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा it becomes tan थीटा and then we can take this rg in that side so as to get this as v square is equal to rg into bracket mu, और चलो तो rg as it is in bracket it will be tan theta plus mu and that is to be divided by, here it is 1 minus mu into tan theta, तो ये जो इक्वेशन है ये हमको मिल गया and even we can take the square root and get this as root of, तो ये हमको मिल जाएगा root of this whole thing that is going to be rg into bracket tan theta plus mu divided by 1 minus mu into tan theta, and this is going to be the formula for the safety speed limit in case of a vehicle which is traveling along rough banked road. So maximum speed with which the vehicle can travel in a banked road can be found out by using this formula this way. तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये हम सभी भी यूज कर सकते हैं जब हमको किसी भी व्हीकल का सेफ्टी स्पीड लिमिट निकालना होता है बैंक रोड के अंदर। देखिए ठीक से हमने क्या क्या किया स्टार्टिंग से, अगर कुछ डाउट है तो पूछो जरूर। देखो सबसे पहले हमने ये देखा कि इस इक्वेशन के अंदर हमने ये जो व्हीकल है इस व्हीकल को रिप्रेजेंट किया एक पॉइंट के द्वारा, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे उसका खड़ा है उसके ऊपर हमने फोर्सेस उसके ड्रॉ किए, 4 फोर्सेस हमको मिल रहे हैं, एक है mg, दूसरा है fc, तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन और चौथा है fs दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अभी उसमें से हमने नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों को रिजोल्व करके उनके दो कंपोनेंट्स निकाल के बताए, एक है n cos थीटा, दूसरा n sin थीटा, और उसके बाद fs को भी हमने रिजोल्व किया दो कंपोनेंट्स में, उसमें से एक कंपोनेंट बनता है fs cos थीटा और दूसरा बनता है fs sin थीटा। अगर हमने हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का कंडीशन यूज किया तो हमको मिलता है fc इज इक्वल टू, ये जो fc यहाँ पे हमको मिल गया, fc इज गोइंग टू बी द सम ऑफ दीज टू हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड लेफ्टवर्ड फोर्सेस, तो ये n sin थीटा और fs cos थीटा इन दोनों का सम जो है वो fc के द्वारा बैलेंस हो रहा है, ये हमको इसमें से पता चला, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और इक्वेशन नंबर 2 डिराइव करने के लिए हमने इस वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज किया, वर्टिकल इक्विलिब्रियम का, जिसको बोला जाता है इस तरह से कि जो n cos थीटा जो है, n cos थीटा हैज टू बैलेंस द सम ऑफ दीस टू fs sin थीटा एंड mg, तो इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो हमको ये मिल गया। इसमें से हमने mg को एक तरफ रखा और बाकी सब टर्म को इस तरफ लेके गए दूसरी तरफ, तो इससे हमको n cos थीटा माइनस n fs sin थीटा ये इक्वेशन मिल गया। इन दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया जिससे हमको ये fc ऊपर में मिल गया और mg डिनोमिनेटर में मिल गया, और इस तरफ ये जो पूरा फैक्टर है वो न्यूमरेटर में और ये जो पूरा फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में मिलने के कारण, और उसके बाद फिर हमने fs इक्वल टू म्यू इंटू n ये बात यूज की
जिससे ही हमको जो n जो है वो कॉमन निकालने आया, और n को कॉमन निकालने के बाद हमने उसको कैंसिल कर दिया, और उसके बाद इधर भी fc को mv स्क्वायर अपॉन r लिख के mm कैंसिल कर दिया, तो इससे हमको ये v स्क्वायर अपॉन rg मिल गया। और उसके बाद फिर हमने cos थीटा से डिवाइड किया, देखो इधर cos थीटा से हमने डिवाइड किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको ये जो मिला, तो जहाँ पे भी हमको cos थीटा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा मिला, तो वो tan थीटा बन गया, देखो ये और ये जो है वो tan थीटा बन गया। और जहाँ पे cos थीटा से cos थीटा को हमने डिवाइड किया, तो वहाँ पे वो कैंसिल हो गया, डायरेक्ट 1 बन गया, तो इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे 1 बन गया। तो इसलिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, this would be the equation of this, and if we take this rg in that side, then we can get this v square equal to rg into this whole thing, and then we can understand this v is going to be equal to root of rg into bracket में tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta. This is going to be the safety speed limit for a vehicle which is traveling along the banked road, rough banked road, which has friction also. तो friction भी उसमें काम करता है। तो अभी हमको ये देखना है, this is the maximum speed limit, remember. But if we consider, एक सिंपल सी बात समझो यहाँ पे कि there should be the minimum also, मिनिमम स्पीड लिमिट भी यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो देखो ठीक से, अगर ये हम सपोज कंसिडर करते हैं, ये कंसिडर करो, और अभी अगर अभी यहाँ पे हम समझ सकते हैं आराम से कि अगर हमने इस व्हीकल का स्पीड अगर मैक्सिमम नहीं रखा, अगर ये व्हीकल अगर स्लो स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहा है, तो इट मे हैपन दैट दिस व्हीकल विल जस्ट स्लाइड डाउन, तो इस डायरेक्शन में वो स्लाइड नीचे की तरफ स्लाइड होगा। तो अगर उसका स्पीड बहुत कम है तो उसके लिए हमको इस व्हीकल का मिनिमम स्पीड लिमिट भी निकालना होगा। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड विथ व्हिच द व्हीकल शुड ट्रैवल सो दैट इट डजंट स्लाइड डाउन। तो ये नीचे की तरफ स्लाइड न होने के लिए उसको कितना मिनिमम स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, वो हमको भी निकालना है। दैट इज द नेक्स्ट डेरिवेशन वी हैव टू सी। देखो ठीक से, वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड with which the vehicle can travel so that it doesn't slide down। तो उसके लिए फिर से एक बार सेम डायग्राम हमको यूज करना पड़ेगा। सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड, एंड सपोज देयर इज surface of the road is banked at some angle like this, तो इस एंगल पे वो बैंक किया हुआ है, और मान लो कि व्हीकल जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट वंस अगेन, एंड सपोज ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास है वो, अभी इसके ऊपर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं आराम से। अभी एक तो नो डाउट वेट तो काम करेगा ही करेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये हो गया वेट mg। दूसरा फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इस डायरेक्शन में रोड के सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, नो डाउट। तीसरा फोर्स उसके ऊपर काम करेगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, जो इस तरफ काम कर रहा है, नो डाउट, बाहर की तरफ। और चौथा और एक फोर्स हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं इसके ऊपर जो काम कर रहा है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। बट दिस टाइम सिंस द व्हीकल इज मूविंग वेरी स्लोली, तो व्हीकल जो है बहुत स्लो स्पीड से, बहुत कम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है, द व्हीकल इज गोइंग टू ट्रेवल दिस वे, स्लाइडिंग इस व्हीकल का इस डायरेक्शन में होने वाला है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा स्लाइडिंग को रोकने के लिए काम करता है। तो स्लाइड होने से रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में यहाँ पे इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। So we can show it in this direction here. So this is going to be the direction of frictional force, we can say. This is the Fs. So frictional force is acting along the surface of the road but tangentially upwards, so that we can say this frictional force will oppose it from sliding down. नीचे की तरफ जाने से उसको रोकने के लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एंगल जो है वो थीटा है, तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये एंगल भी जरूर थीटा होगा, obviously we can understand। And at the same time, if we resolve this n once again in two components, one of which is going to be vertical, so this angle being theta, ये angle भी theta होने की वजह से ये जो vertical component है वो भी obviously n cos theta बन जाएगा, no doubt। और इस n का जो horizontal component है उसको भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे n sin theta, no doubt।
तो ये बन गया हमारा n sin थीटा। ठीक है, तो n sin थीटा और n cos थीटा ये दोनों कंपोनेंट्स है n के, और एट द सेम टाइम वी हैव टू रिजॉल्व दिस fs आल्सो। तो इस fs को भी हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा जरूर। इसमें से एक कंपोनेंट उसका जो है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, जिसको हम बोल देंगे वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में ये fs यहाँ पे काम कर रहा है। तो थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। सपोज okay, so let us see. हम बात कर रहे थे fs को रिजॉल्व करने के बारे में। n को तो हमने चलो रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में। n cos थीटा उसका वर्टिकल कंपोनेंट बन गया, n sin थीटा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया। ठीक है, अभी हमको fs को भी रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, जिसमें से हमको इसका जो एक कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा यहाँ पे दिखाएंगे। ये सपोज उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, ये बन गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको हम बोल देंगे fs sin थीटा, सॉरी cos थीटा। fs cos थीटा उसको बोलना पड़ेगा हमको, because it is a horizontal component, adjacent component. So this is going to be fs into cos theta, and at the same time the vertical component of this fs can be represented by fs sin theta as well. तो ये बन गया हमारा fs sin theta. This is going to be fs sin theta. ठीक है, अभी हम इक्विलिब्रियम का कंडीशंस ढूंढ सकते हैं। देखो ठीक से, if we try to find out the conditions of equilibrium, if we apply the horizontal and vertical equilibrium, then we can say the first of all apply the condition of horizontal equilibrium. So horizontal equilibrium से हमको क्या मिलता है? देखो, fs cos theta and fc add up together and has to balance this n sin theta. तो इसलिए हमको इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा fc plus fs cos theta, which is going to be equal to n sin theta. ठीक है, ये n sin theta। अभी ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, लेकिन इसीलिए हमको fc को निकालने के लिए fc को एक तरफ रखेंगे और ये fs sin थीटा को उस डायरेक्शन में वो साइड में भेज देंगे। तो उससे वो बन जाएगा n sin थीटा माइनस fs cos थीटा। ओके, ये बन गया हमारा fc। This is equation number 1, and now we have to see the vertical equilibrium. तो वर्टिकल कंडीशन अगर यूज करेंगे वर्टिकल इक्विलिब्रियम का, तो यहाँ पे n cos थीटा और fs sin थीटा इन दोनों का जो एडिशन है वो mg को बैलेंस करना पड़ेगा जरूर। और वो अगर हमने कंडीशन यूज किया यहाँ पे तो हमको मिलेगा दूसरा इक्वेशन, जो कि रहेगा mg इज इक्वल टू द सम ऑफ n cos थीटा प्लस fs into sin थीटा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी